Hello and welcome to the grammar class. So today we are going to see a very basic of grammar, that is the sentence. Okay. So before moving on, let us see what exactly a sentence is. A sentence is a group of words which makes complete sense, or a sentence is a grammatically complete idea. बच्चों, सेंटेंस को हम जैसे देखते हैं कि एक समूह है, शब्दों का समूह, ना केवल शब्दों का समूह बल्कि एक उसमें कंप्लीट सेंस या कंप्लीट आइडिया या मीनिंग दिखाता हो, उसको ही हम एक सेंटेंस कहते हैं। वाक्य चाहे हम कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, मराठी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, कोई भी लैंग्वेज में जब ग्रामेटिकली आप सही लिखते हैं, उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तब उसको हम एक पूर्ण वाक्य कहते हैं। ओके, तो हम सेंटेंस को हम ये समझ लें कि एक शब्दों का समूह है जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम वाक्य, पूर्ण वाक्य कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। What is your name? Akbar was a great king. Hooray, we have won the match. Please be quiet. Get out of here. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सेंटेंसेस के जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है। Now let us see the different kinds of sentences. ये जो sentences या वाक्य हैं, इसको विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, आज हम देख लेते हैं। First is declarative or assertive, or we can say simple sentence. It includes positive and negative. Next is interrogative or question sentence. Third is imperative or command sentence. Fourth is exclamatory sentence. Let us see one by one the detailed part of each kind. First one is declarative or assertive, or we can say a very simple form of sentence. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. Declarative को हम घोषणात्मक या फिर निश्चयात्मक वाक्य भी हम कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ कथन बोला जाए या फिर कोई घोषणा किया जाए या फिर कोई स्पष्ट रूप से किसी चीज को बताया जा रहा हो, उसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं एग्जाम्पल से पहले बताना चाहती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट्स, एक कथन है। ओके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, it states the facts or an opinion. It ends with a period or a full stop. It is written in present tense and expresses a direct statement. It can be a simple or compound sentence. A simple declarative sentence consists of subject and predicate. Now let us see some of the examples which includes both the subject and predicate, and which is also in present tense, and it gives some information or it states some facts. Like she sings. She sings, it ends up with a period or with a full stop. She sings, वह गाती है। She हमारा विषय या सब्जेक्ट, sings is the action what she does. Sings is the predicate. Likewise,
The sky is blue. The grass is green after the rain. His shoes were brand new and now they are missing. These are some of the examples of घोषणात्मक या हम कह लें निश्चयात्मक वाक्य. Okay. Let us see the next one. Interrogative or question sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. प्रश्नात्मक वाक्य को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेट करना मतलब प्रश्न पूछना. ओके. एंड इट इज वेरी इजी टू स्पॉट बिकॉज इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. हम बहुत इजीली इसको हम पता कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसका अंत जो हम देखते हैं वो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. Here we can see interrogative are of 4 types. As you can see in the examples, 4 types are there. First one is alternative. Next is WH questions. Next is question tags and then yes or no type questions. Interrogative या प्रश्नात्मक जो वाक्य होता है इसको हम 4 भागों में या 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. ये 4 प्रकार हैं. पहला ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव मतलब टू गिव एनी चॉइस और टू गिव एनी ऑप्शन. डू यू वांट कॉफी, टी और सोडा. यहाँ हमने प्रश्न पूछा और प्रश्न के साथ हमने ऑप्शंस भी दिए, चॉइस भी दिया. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में आते हैं. वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव इट स्टार्ट्स विथ WH क्वेश्चंस. ऐसे प्रश्न जो WH वर्ड से शुरू हो उनको हम WH क्वेश्चंस के अंतर्गत लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेयर, whom, who, which, whose. These are all WH questions. Next is you live in the city, don't you? This sentence is divided into 2 parts. कॉमा के बाद एक जो वर्ड आपने देखा यहाँ पे don't you जो है एक्चुअल में एक टैगिंग वर्ड है, एक शॉर्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. इट इंक्लूड्स हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज हो जाता है क्वेश्चंस में. अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब डिक्लेरेटिव को वी कैन चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Okay, so the short way of asking the question or the tagging out is called question tag. Next is she ready to go to market? ये क्वेश्चन में यदि हम देखें तो it has started with the helping verb. ऐसे sentences जो helping verb से start होते हैं और उसका उत्तर सिर्फ yes और no में ही दिया जा सकता है. WH क्वेश्चंस में होता यह है कि we give the descriptive or the detailed answer of WH question, but जब yes और no क्वेश्चंस का बारी आती है इसका मतलब हम सिर्फ yes या no में उत्तर देंगे जब हम helping verb से start करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, is she ready to go to market? इसका उत्तर क्या होगा? Yes, she is ready to go to market. या फिर no, she is not ready to go to market. तो हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं. एंड इंट्रोगेटिव्स आर ऑफ 4 टाइप्स: alternatives, WH questions, question tags and yes or no type of questions. Next is imperative और command sentence. इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य भी हम कह सकते हैं. A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence.
These sentences are used to issue a command or instruction. It also makes request or offer advice. It ends with a period or full stop. Imperative और command sentences को हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं. ऐसे sentences, ऐसे वाक्य जो हमारे कोई इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहा हो, कोई ऑर्डर आदेश दे रहा हो, कोई रिक्वेस्ट विनती निवेदन कर रहा हो, इनविटेशन आमंत्रण या डिमांड मांग. So we can see here some of the examples are there which includes the different types of imperative or command sentences. तो imperative में हम इतने प्रकार हम यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट वन, preheat the oven before baking. This is instruction. एक निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि ओवन को बेक करने से पहले प्रीहीट करें. This is instruction, निर्देश. Next example, get out. This is an order. ये एक ऑर्डर है, कमांड है. ओके. प्लीज बी क्वाइट. प्लीज वर्ड यहाँ शो कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. प्लीज बी क्वाइट. नेक्स्ट, प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर. अब यहाँ देखो प्लीज वर्ड यहाँ पे भी है, पर यहाँ हम इस सेंटेंस में एक्चुअल में रिक्वेस्ट नहीं, इट इज एन इन्विटेशन, एक आमंत्रण है कि हमको डिनर के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए. डोंट ईट ऑल द कुकीज. दिस कुड बी रिक्वेस्ट और डिमांड. ओके, ये एक रिक्वेस्ट तौर पे भी हो सकता है कि डोंट ईट ऑल द कुकीज, और हम डिमांड या मांग भी हम बोल सकते हैं कि हम बोल रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि आप पूरी कुकीज मत खाइए. ओके, तो इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, और इसमें हम निर्देश, कोई रिक्वेस्ट निवेदन या फिर आमंत्रण या कोई कमांड या ऑर्डर या डिमांड, ये सारी चीजें यदि हम लिख रहे हैं तो इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं. नाउ विल सी द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी, विस्मय आदि बोधक वाक्य. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जो हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे व्यक्त कर रहा हो, है ना, जो हम फील कर रहे हैं वो व्यक्त कर रहा हो, तो उसको हम विस्मय आदि बोधक वाक्य में हम लेते हैं. देखो, हम जब बोलते हैं तो वी एक्सप्रेस थ्रू इट आवर टोन. ओके, बट जब हम लिखते हैं वी राइट इट थ्रू सर्टेन मार्क्स. जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाए, तो उसी तरीके से जब हम अपना इमोशंस शो कर रहे हैं तो वी आर पुटिंग वन एक्सक्लेमेटरी मार्क. ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर पोयम में देख सकते हैं, जहां पोएट अपना इमोशंस या फीलिंग्स व्यक्त करता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क के थ्रू वो शो करता है रिटन में कि आप वो उसका इनर फीलिंग. तो जो चीजें हम वाक्य लिखते हैं और बोलने में बहुत फर्क होता है. जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है सर्टेन वर्ड्स पे, और डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑल्सो व्हेन वी आर सेइंग. बट व्हेन वी राइट वी हैव टू लुक आउट सम ऑफ द marks here. Let us see some of the examples here. Wow, I really love it. It shows the strong emotion of the person who is saying. What a lovely bouquet of flowers. It begins with what? Though it begins with what, it is not a question. It ends with an exclamatory mark. It shows that it is the emotions. Okay. What a lovely bouquet of flowers. How fast you ran.
Here again, how is starting with how word, but it's not a question. It's an exclamatory. It ends with exclamatory mark, and it shows the emotions, and it begins with how. Sonu's gift was so amazing. It contains so. So word here shows that the feeling of amazement. He has such a kind soul. It ends with again exclamatory. It again shows the word such shows here the exclamatory, or we can say the strong feeling of the person who is speaking. Okay. So here in exclamatory you have seen we are including our strong emotions that can begin with the word what, how, so, or such. Okay. So apart from this, one more is there, though it is not in your course book, but you should know about that. It is optative sentence, a sentence which expresses prayer, keen wish, curse, blessings, etc. आप कई बार हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, इस तरीके के जो सेंटेंसेस लिखते हैं, इट ऑल कम्स इन द ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, तो though it is not included in class 10th CG board, but it is also one of the kind. You should know about it. And questions which are asked in CG board is about which kind of or which type of sentence is this. So I think it will be easy now for you to find it out that which type of sentence is it after seeing this video. So thanks for watching and stay tuned for the next video. Thank you.